میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا اور اس وقت اپنی کلینک میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دن بھر بے شمار عورتیں اور لڑکیاں علاج اور معائنے کے لیے آیا کرتی تھیں اور مسلسل مریضوں کو دیکھنے کی وجہ سے تھکن غالب آ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے دوپہر کے 2 گھنٹے صرف آرام کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، جن میں کسی مریض کو نہیں دیکھا کرتا تھا۔ اس دن بھی یہی وقت تھا۔ میں اطمینان سے بیٹھا تھا، مجھے کسی کے آنے کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اچانک ایک نوجوان لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ اندر آتے ہی اس نے کمزور آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے کئی دنوں سے مسلسل بخار ہے۔ ہر دوا آزما لی لیکن ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ باہر والے لڑکے نے روکنے کی کوشش کی مگر میں بار بار نہیں آ سکتی۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ ہافتے ہوئے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور آواز میں نقاہت صاف جھلک آ رہی تھی۔ وہ اپنی حالت بیان کر رہی تھی جبکہ میں اسی لمحے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیونکہ میں ابھی کھانے سے فارغ ہوا تھا اس لیے میں نے اسے واپس جانے کو نہیں کہا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کمزوری اور بخار کے باوجود اس کا چہرہ اتنا پرکشش تھا کہ میں اپنی نظر ہٹا نہیں سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اسے خاص اہتمام سے تراشا ہو۔ اس کی گوری رنگت بخار کی وجہ سے سرخی مائع ہو چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے زندگی میں کبھی اتنا شدید بخار نہیں ہوا۔ اگر کبھی ہلکی سی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو گھر کی دوا لے کر آرام آ جاتا تھا، مگر اس بار تو بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ کہتے کہتے وہ آہستہ سے کھانسنے لگی۔ میں نے بامشکل اپنی نظریں ہٹائی، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اپنا بازو دیجیے، میں نبض دیکھتا ہوں، پھر بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے۔ عام طور پر بخار چیک کرنے کے لیے میں تھرمامیٹر استعمال کرتا اور علامت سن کر دوا تجویز کر دیتا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں نے نبض دیکھنے کا بہانہ بنایا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنی کلائی آگے کر دی اور میں نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ نبض سے دیکھنا تو محض ایک جواز تھا، حقیقت میں تو میں اسے چھونا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، بازو میرے ہاتھ میں دیے بخار نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ جیسے بے ہوشی میں تھی اور میں اسی کیفیت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو مضبوطی سے تھامے رکھا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر نہ کریں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، اگر بخار زیادہ بڑھ جائے تو نقصان زدہ ہو سکتا ہے، لیکن دوا سے آرام آ جائے گا۔ میں اسے اس کی حالت سمجھانے کے بہانے طویل ہدایت دے رہا تھا، مگر میری تمام توجہ اس کی نبض پر نہیں بلکہ اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں اس کی بازو تھامے ہوئے باتوں کو آگے بڑھاتا رہا اور اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ شاید بخار کی شدت کے بعد وہ پوری طرح میری طرف متوجہ نہیں ہو پائی تھی۔ پھر وہ بولی، میرا ذہن سن ہو رہا ہے، سارا دن نڈھال پڑی رہتی ہوں، کبھی بخار میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو کبھی دوبارہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ دوا کھاتے کھاتے اب پیٹ میں بھی درد رہنے لگا ہے۔ وہ اپنی حالت سے سخت پریشان تھی، ورنہ عام طور پر خواتین مرد کی نظروں اور چھونے کے انداز کو جلد محسوس کر لیتی ہیں، لیکن میں کافی دیر سے اس کے بازو کو نرمی سے تھامے بیٹھا تھا اور وہ بغیر کسی جھجک کے اپنی کیفیت بیان کیے جا رہی تھی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بخار واقعی بہت تیز ہے، یہ سب آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو چاہیے تھا دواؤں اور گھریلو ٹوٹکوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھ لیتی۔ پھر میں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ابھی فوراً طور پر مجھے بخار کی شدت کم کرنی ہوگی تاکہ یہ دماغ پر اثر نہ ڈالے۔ میں دوا لکھ کر دے رہا ہوں، لیکن دل کے اندر یہ خواہش جنم لے رہی تھی کہ اس کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھا کر اپنی منمانی کر لوں، اور اگر میں ایسا کر بھی لیتا تو شاید وہ مجھے کچھ نہ کہہ پاتی کیونکہ وہ اس وقت بے حد لاچار اور نڈھال تھی۔ مزاحمت کرنا اس کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں خود کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا، لیکن اس سنسان کمرے میں بھی کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا کیونکہ باہر کمپاؤنڈر موجود تھا جو کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا۔ جب وہ نسخہ لینے لگی تو میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، دوائی کے لیے باہر کسی اور میڈیکل اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کمپاؤنڈر بیٹھا ہے، وہیں سے لے لینا۔ اس نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، شکریہ ادا کیا، فیس دی اور چادر درست کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، تم اس حالت میں اکیلے گھر کیسے جاؤ گی؟ میں واقعی حیران تھا کہ
इतनी बीमारी के बावजूद वो क्लिनिक तक अकेली आ गई थी। इसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं आराम से चली जाऊंगी। मेरे शौहर काम पर होते हैं, घर पर और कोई नहीं। घर करीब ही है, 2 गली छोड़कर यहाँ से रिक्शा लेकर निकल जाऊंगी। इसकी बात सुनकर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इसके नाजुक हालत का कोई भी शख्स नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। मैं मज़ीद बात करना चाहता था कि इसी वक्त कुछ ख़वातीन मरीज़ाएँ अंदर आ गईं। इन्हें देखकर मैंने फ़ौरन पेशा वरना अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहा, 2 दिन बाद आकर अपनी हालत ज़रूर बताना। अगर ये बुखार कम ना हुआ तो ख़तरनाक हो सकता है। मेरी बात पर वो लम्हा भर को चौंकी और बोली, ठीक है डॉक्टर साहब। फिर वो वहाँ से चली गई और मैं किसी हद तक मुतमईन हुआ कि वो दोबारा ज़रूर आएगी। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी मरीज़ा को देखने लगा, मेरा जहन बार बार इसी लड़की की तरफ पलट रहा था। इसकी कलाई मेरे हाथ में आने के बाद मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि वह अक्सर अकेली आती थी और इसके शौहर का कभी पता नहीं होता था। मुझे महसूस होने लगा कि इसे काबू पाना शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 2 दिन बाद वह दोबारा चेकअप के लिए आ गई। इस वक्त भी बुखार में मुब्तला थी। वो बोली, डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवा से वक्त तौर पर कुछ आराम तो हुआ, लेकिन अगले ही दिन फिर वही तेज़ बुखार हो गया। मैंने इसका मायना किया और अंदाज़ा हुआ कि इसे मलेरिया है। बुखार मुकम्मल तौर पर उतर नहीं रहा था, लेकिन मुस्तकिल इलाज पर तवज्जो देने के बावजूद मेरा जहन अभी भी लालच और ज़्यादा मफाद में उलझा हुआ था। मैंने इसे इसी वक्त दवाई दी और कुछ देर बाद अपने पास ही बिठाए रखा। रस्मी हिदायत देता रहा। इस दौरान मैं सख्त परेशान नज़र आ रही थी, जबकि मैं नब्ज़ देखने के बहाने बार बार इसे छूता रहा, मगर वह अपनी ही कैफियत में गुम थी। इसी दिन क्लिनिक पर एक मरीज़ भी मौजूद थे। आमतौर पर जब मरीज़ आते तो मैं एक साथ 3-4 मरीज़ कमरे में बुला लेता और उन्हें जल्दी जल्दी चेक कर लेता था, लेकिन वो लड़की आने लगी थी। मैं इसे कमरे में अकेला बुलाकर बाकी सबको बाहर ही भेज देता। वो बुखार की शिद्दत के बाद बेजान से बैठी रहती और मैं इसे चेक करने के बहाने तस्कीन हासिल करता। मैं इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता था, मगर मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बार भी मैंने ऐसी दवा दी जो वक्ती तौर पर सुकून देती, मगर बुखार से मुकम्मल निजात नहीं दिला सकती थी। वो खामोशी से उठी और वहाँ से चली गई। वो वाकई शदीद मजबूरी का शिकार थी, क्योंकि इसके साथ कभी कोई नहीं आता था। बुखार की हालत में वह बड़ी मुश्किल से क्लिनिक आती थी और मैं इसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। 3-4 बार मैंने वही हरकत दोहराई। मुझे इल्म था कि ज़्यादा देर तक वह मुझ पर एतबार नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसकी हालत ज्यों की त्यों ही रही तो ज़ाहिर है इसका शौहर इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाएगा। इससे पहले मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। एक दिन वह इसी तरह बुखार की शिद्दत में मेरे पास आई और बेजारी से बोली, अब तो मेरे शौहर भी मुझसे नाराज़ होने लगा है। वो दफ्तर से छुट्टी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिल रही। वो हर बार मुझे इलाज के पैसे देकर जाता है, मगर आपकी दवा से मुझे ज़रा सा भी सुकून नहीं मिलता। वो अपनी हालत से सख्त तंग आ चुकी थी। घबराहट में बोली, डॉक्टर साहब, मुझे बताएं आखिर मेरे साथ मसला क्या है। इस रोज़ खुशकिस्मती से क्लिनिक पर कोई और मौजूद नहीं था। मैंने इससे कहा, मैं तुम्हारा तफसीली मायना करना चाहता हूँ और तुम्हें एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें आराम आ जाए। मैंने तुम्हारा मसला समझ लिया है। ये सुनकर वे सोच में पड़ गई। वह इसी कश्मकश में थी कि कहीं कोई संगीन मसला ना हो। मैं जल्दी से उठा और बाहर जाकर कंपाउंडर से कहा, तुम्हें जो सामान बाज़ार से लाना था फ़ौरन से लाओ और बाहर नोट लगा दो कि क्लिनिक 1 घंटे के लिए बंद रहेगी। कंपाउंडर हैरत से मुझे देखने लगा और बोला, डॉक्टर साहब, इस मरीज़ा का क्या करूं? तो अभी आपको दिखाने के लिए अंदर आई गई हैं। मैंने कहा, इसका चेकअप मैं कर चुका हूं, वह अभी भी चली जाएंगी। मुझे कुछ देर आराम करना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये महज एक बहाना था। कंपाउंडर ने इस बात में सर हिला दिया और पैसे लेकर बाज़ार चला गया। जाते ही उसने एहतियात दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर नोट लगा दिया कि क्लिनिक 1 घंटे के लिए बंद रहेगी। ये देख रेख में मुतमईन हो गया। कंपाउंडर के निकलते ही मैंने अंदर से क्लिनिक लॉक कर दिया और कमरे में वापस आ गया। लड़की को अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त इस बड़ी क्लिनिक में इसके और मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, डॉक्टर साहब, इस बार मुझे अच्छी दवा दीजिएगा ताकि मुझे सुकून मिल सके। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फ़िक्र मत करो, इस बार तुम्हें बेहतरीन दवा मिलेगी, जल्दी ही आराम आ जाएगा। मैंने पहले से ही एक मखसूस इंजेक्शन तैयार कर रखा था। लड़की को इंजेक्शन लगाने के बाद मैं इत्मीनान से कागज़ और कलम लेकर बैठ गया। इस दौरान मैं अपनी चादर दुरुस्त करते हुए अपने बारे में बातें करने लगी। कुछ ही देर में इंजेक्शन का असर होना शुरू हो गया। इसने अचानक सर पकड़ लिया और घबरा कर बोली, डॉक्टर साहब, कमज़ोरी बहुत बढ़ गई है, मेरे लिए यहाँ बैठना मुश्किल पड़ रहा है। मैंने नरमी से कहा, वहाँ साइड पर स्ट्रेचर पर लेट जाओ, आराम आ जाएगा। लेकिन वह हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं
घर जाकर आराम कर लूँगी। मैंने इसरार किया, कुछ देर यहाँ ठहर जाओ, जब बेहतर महसूस हो तो घर चली जाना। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा बुखार बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। मेरी ज़िद पर वो हिचकिचाते हुए स्ट्रेचर पर लेट गई, लेकिन लेटने से भी अब भी कतरा रही थी। मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मुसलसल बोलते हुए पर्ची पर दवाइयाँ लिखता रहा। दरअसल मैं इसके बेहोश होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वह सर थामे नींद दराज हुई और अगले ही लम्हे में होशो हवास से बेगाने हो गई। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और बेहोश पड़ी इस हसीन लड़की की चादर हटा दी। मुझे यकीन था कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। वो बुखार से तपती हुई बेखबर थी और मैं इत्मीनान से इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाता रहा। जब तक कंपाउंडर क्लिनिक से बाहर था, मैं बला खौफो अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहा। वो बेहद दिलकश लड़की थी और मैं भी जवान था। ज़िंदगी में पहली बार किसी के हुस्न ने मुझे इस हद तक मजबूर किया था। इस लम्हे में अपनी अकल खो बैठा था, बस जुनून सवार था। पूरे 1 घंटे बाद जब कंपाउंडर वापस आया तो मैं लड़की का हुलिया दुरुस्त करके अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। कंपाउंडर बाहर जा बैठा, इसे अंदाज़ा तक न हुआ वह लड़की अब भी मेरे कमरे में मौजूद है। कुछ देर बाद क्लिनिक के दरवाजे खुले और मरीज़ आने लगी, जबकि लड़की इसी तरह स्ट्रेचर पर पड़ी थी। मैंने इस पर इसकी सिया चादर डाल दी थी। काफ़ी देर बाद जब वे होश में आई तो कमरे में मरीज़ों का हुजूम था। वे घबरा कर उठ बैठी। क्लिनिक में सो जाने पर शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। अभी इंजेक्शन का असर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए इसे अंदाज़ा नहीं हो सका कि इसके साथ क्या हो चुका था। मैंने इसे पर्ची थमाई और इसने फ़ीस अदा करके क्लिनिक से रुखसत ली। जाते हुए इसके कदम लड़खड़ा रहे थे और चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। मैं अनजान बना अपनी जगह बैठा रहा, मगर अगले ही दिन जब वह अचानक दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई तो मैं एक लम्हे को ठटक गया। इस दिन भी वह लड़की दोपहर के वक्त आई, जब क्लिनिक बिल्कुल खाली होता था और कोई रश नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही वे रोते हुए मुझसे उलझने लगी। चीखते हुए बोली, कल तुमने मुझे बेहोश करके क्या तमाशा किया? तुम डॉक्टर नहीं डाकू हो, तुम्हें खुदा का ज़रा भी खौफ नहीं आया? वो चीख चीख कर रो रही थी और कह रही थी, जालिम इंसान, मैं पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रही थी और अब मेरा शौहर मुझ पर सवाल उठा रहा है। वो पूछता है कि इलाज के नाम पर मैं किस मर्द के साथ वक्त गुजारती रही हूँ। वो तड़प तड़प कर रोती मुझे बुरा भला कह रही थी। इसका शौहर इस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा रहा था, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय मैं उल्टा भड़क उठा। सख्त लहजे में कहा, जाकर पता करो तुम्हारी यह हालत किसने की है। मैं तो यहाँ इलाज के लिए बैठा हूँ, मेरे पास दिन में कितने लोग आते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस पर गुजरी थी वो सब जानती थी। एक दिन पहले वो होश में नहीं थी, इसलिए खामोशी से चली गई थी, लेकिन अब मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। वो रोते हुए बद्दुआएं देने लगी, मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें भी यही दिन देखना पड़े। तुम्हारी भी बहन या बेटी होगी, अल्लाह करे वह भी इसी अज़ियत से गुजरे जिसमें मैं जल रही हूँ। तुमने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी दवाई दी कि मैं कभी ठीक ना हो सकूँ। यह कहकर वो मुझे बद्दुआएं देती आंसू बहाती वहाँ से निकल गई। लेकिन सच ये था कि इस हरकत के बाद भी मेरा ज़मीन ज़रा सा भी नहीं जागा, शायद इसलिए कि मेरा ना कोई बहन थी और ना ही बीवी। मैं जवान था, बेफिक्र था, मगर आज इसकी बद्दुआएं सुनकर पहली बार मेरे दिल में खौफ की एक लहर उठी। मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने इस लड़की के साथ ज़्यादती की है। मेरी ये गलती ने इस बेचारे को न जाने किस करब में डाल दिया होगा। इसके घर में अब क्या हालात थे मैं नहीं जानता था। वो दोबारा कभी मेरे क्लिनिक पर नहीं आई और मैंने भी इसके पति का पता करने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन तक शर्मिंदगी का एहसास रहा, मगर वक्त के साथ सब मामूल पर आ गया। मसरूफियात ने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी कि किसी और बात पर अफसोस ज़रदा हो सकूं। दिन गुजरते गए, वाक़या भी जहन से मिटने लगा। आखिर में हवस पुरुष इंसान नहीं था। न इससे पहले और न इसके बाद मैंने किसी मरीज़ा के साथ ऐसी हरकत की। बस वही एक लम्हा, वही लड़की थी जिसके हुस्न ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि गलती हो गई, दोबारा नहीं दोहराऊँगा। जल्दी ही मेरी शादी हो गई। बीवी निहायत वफ़ादार और ख़ूबसूरत थी कि इसकी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी से हर कमी ख़त्म कर दी। शादी के बाद वह वाक़या याद ही ना रहा। मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगा। साल गुजरते गए, 23 बरस यूं ही बीत गए। इस लड़की का ख्याल कभी दोबारा नहीं आया, जब तक कि एक दिन मेरी अपनी बेटी शादी के तीसरे महीने ही रोती धोती तड़पती हुई मायके ना आ गई। इस कदर बदहाल थी कि चंद कदम चलते ही लड़खड़ा गई, जिसके हसीन चेहरे पर आंसुओं की नमी साफ दिखाई दे रही थी। इसे देखते ही मेरे दिल पर जैसे आरा चल गया। मैं और मेरी बीवी तड़प कर अपनी इकलौती बेटी को सीने से लगा बैठे। घर के बाहर टैक्सी खड़ी थी जिसका किराया तक अदा नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से पैसे देकर ड्राइवर को रुखसत किया, मगर दिल
में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शादी के बाद मेरी बेटी हमेशा शान और शौकत से अपने शौहर के साथ गाड़ी में आती थी, लेकिन आज वे टैक्सी में आई थी, वो भी इस हाल में कि जैसे होशो हवास में ना हो। मेरी जान थी वो, मेरे जिगर का टुकड़ा, न जाने इसकी ये हालत किसने कर दी थी। दिल दहल गया। मैं बेताब होकर बार बार पूछता रहा, मगर वे बस रोती चली जा रही थी। इतनी टूट चुकी थी कि ये लफ्ज़ अदा करने की शिद्दत भी नहीं रही थी। मैंने इसे सहारा देकर सोफ़े पर बिठाया ही था कि वो कँपकँपाते हुए अचानक बेहोश हो गई। मेरी बीवी और मैं हड़बड़ा कर घबरा गए। मैं खुद डॉक्टर था, मगर इस लम्हे अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर मेरा जहन सुन्न हो गया। जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मुआयना किया तो बताया इसे शदीद सदमा पहुंचा है, नर्व्स ब्रेकडाउन हुआ है। ये सुनकर मैं जैसे पत्थर का हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी इस हाल तक पहुंच गई। मैंने लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। 3 माह पहले ही तो मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी निहायत धूमधाम से की थी। वो नाजुक, मासूम और बेहद हसीन थी। मैंने इसे बड़े घराने में भी आया था। दामाद आला तालीम याफ्ता और खुशहाल नौजवान था। इसने खुद पसंद करके रिश्ता भेजा था। शादी में दोनों तरफ से किसी चीज़ की कमी ना छोड़ी गई थी। मेरी बेटी इतनी खुश अखलाक और ज़िंदगी से भरपूर थी कि कोई भी इसे नापसंद नहीं कर सकता था। वो लोग बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से मेरी बेटी को रुखसत करके अपने घर ले गए थे। शादी के बाद भी वो वहाँ खुश और मुतमईन थी, बिल्कुल वैसे ही हंसती मुस्कुराती जैसे हमारे घर में रहती थी। ससुराल वालों ने भी इसे लाड प्यार से रखा था। वो थी इतनी नाजुक, हसीन और मासूम कि कोई गुड़िया हो। जो भी इसे देखता इसकी खूबसूरती का गिरवेदा हो जाता। मैंने अपनी बेटी पर हमेशा बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो न्यौछावर की थी। कभी इसकी आंख में आंसू आने नहीं दिए। इसकी मामूली सी तकलीफ़ पर भी मेरा दिल तड़प उठता था। मेरी शादी के तीसरे महीने वह अचानक इस हाल में हमारे घर आई, और वह भी अकेली। यही बात मेरे दिल में खटक रही थी, क्योंकि वह हमेशा शौहर के साथ आती थी। पहली बार वो तन्हा आई थी। मेरी बीवी की हालत और भी ख़राब थी। वो रोते रोते अपने बाल नोचने लगती। हम दोनों के जहन में यही सवाल था कि आखिर बेटी को क्या हो गया है, वो इस हाल में क्यों वापस आई है। क्या इसका शौहर से झगड़ा हुआ? लेकिन कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था। वे बार बार सोच कर पागल हुई जा रही थी। कहने लगी, मैंने तो कल ही फ़ोन किया था, वे बिल्कुल ठीक थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया? मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बेटी की हालत इंतहाई तशनाक हो चुकी थी, होश नहीं आ रहा था। 2-3 दिन हम हॉस्पिटल में इसके साथ बैठे रहे। इन दिनों मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ बेईमान हो गई थी। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी थी। वो बहुत नाजुक दिल की मालिक थी। यकीनन इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जो वह बर्दाश्त ना कर सकी। जब इसे होश आया तो हमारी जान में जान आई, मगर वह खामोश, बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। हम इसे घर ले आए और बहलाने की हर कोशिश की। मैंने अपने दामाद को फ़ोन करके सब कुछ बताया था, लेकिन वे बीवी को देखने तक ना आया। मैं बेटी से पूछना चाहता था कि इन दोनों के बीच क्या हुआ, इसका शौहर अचानक इतना क्यों बदल गया, लेकिन जब भी मैं सवाल करता वो बस रोने लगती। मेरी बीवी ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, अभी इसे कुछ मत पूछो, पहले इसे ठीक होने दो, फिर तफसील जान लेना। मुझे डर है कि कहीं दोबारा इस पर कोई सदमा ना गुजर जाए। मैं खामोश हो गया और इंतज़ार करने लगा कि बेटी खुद कुछ बताएगी। ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ गई, लेकिन बेटी ने वापस जाने का नाम नहीं लिया और ना दामाद ने कोई राब्ता किया। एक दिन मैं क्लिनिक से लौटा तो अपने कमरे के दरवाजे पर कदम रुक गए। अंदर बेटी रोते हुए अपनी माँ को अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रही थी। इसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैं पूरी बात सुनकर पत्थर का हो गया। मेरी बेटी हिचकियाँ लेकर रो रही थी। वे कह रही थी कि इसकी ज़िंदगी तो ससुराल में बहुत अच्छी थी, शौहर भी बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर वह बोली, चंद रोज़ पहले हम दोनों बाज़ार गए थे, मैंने ज़िद करके गोलगप्पे खाए। घर आते ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने शौहर से अपनी हालत छुपाई, मगर अगले दिन बुखार हो गया। शौहर घबरा गया और अस्पताल ले जाना चाहा, मगर मैंने इसे रोक दिया और कहा कि तुम इत्मीनान से दफ्तर जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके अपना चेकअप करवा लूँगी। बेटी के ससुराल में एक फैमिली डॉक्टर हमेशा आता जाता था। वो बता रही थी शादी के बाद जब भी मैं बीमार पड़ती वही डॉक्टर घर आता। इस दिन भी मैंने इसी को फ़ोन कर दिया। शौहर मुतमईन होकर दफ्तर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया। मेरा चेकअप करते हुए बहाने से मुझसे बातें करने लगा। घर पर इस दिन कोई नहीं था। इसने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि सब रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं और शौहर दफ्तर है, इसलिए मैं अकेली हूँ। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया और सुसकते हुए कहने लगी, इसने मेरा चेकअप किया और एक दवा दी जिससे मुझे नींद तारी होने लगी। दिमाग सुन सा गया। फिर अचानक इसने शराफत का नकाब उतार कर अपनी असल शक्ल
अकल दिखा दी। डॉक्टर ने मेरी बेटी को नशा वात दवा देकर इस पर जुल्म ढारना शुरू कर दिया। वो होश में थी, सब समझ रही थी, मगर जिस्म पर काबू ना था। बार बार इसे रोकने की कोशिश करती रही, मगर बेबसी के आगे वो कुछ ना कर सकी। डॉक्टर ने अपनी हैवानियत पूरी की और फिर इसे इसी हालत में छोड़ कर भाग गया। इत्तेफाक से इस दिन इसका शौहर बीवी की फिक्र में जल्दी घर आ गया। कमरे में दाखिल होते ही बीवी को इस हाल में देखकर पत्थर का हो गया। इसे लगा कि इसकी गैर मौजूदगी में बीवी ने किसी और को घर बुलाया है। गुस्से में भड़क कर वो चीखने लगा, मैंने तुम्हें मासूम समझा, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया था, तुम्हें इज्जत दी, मान दिया, मगर तुम तो इतनी गिरी हुई निकली कि जैसे ही मौका मिला आशिक को घर बुला लिया। मेरी बेटी इस वक्त नशे के असर में थी। शौहर की बात समझने की कोशिश करती रही, कुछ कहना चाहती थी मगर ज़ुबान साथ ना दे सकी। शौहर गुस्से में दरवाज़ा पटकता हुआ घर से निकल गया। जब दवा का असर कम हुआ तो बेटी को सब याद आया। हकीकत इस पर बिजली बन कर गिरी। वो शिद्दत से रोने लगी। रात गए शौहर वापस आए तो बेटी ने हाथ जोड़कर आंसू बहाकर कस्में खाकर समझाने की कोशिश की, इसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, वे इसमें शामिल नहीं थी। यहाँ तक कि इसने बताया कि डॉक्टर ने इसे नशावर दवा दी थी, मगर शौहर ने ये ना माना। तैश में आकर बोला, वो डॉक्टर तो हमारा ख़ानदानी डॉक्टर है, बरसों से हमारे घर आता है, हमारी बहनों का इलाज इसी ने किया है। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तुमने इल्ज़ाम लगाने के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया है। शौहर की आवाज़ गूंज रही थी, वो डॉक्टर हमारा ख़ानदानी डॉक्टर है, मैं उसे बरसों से जानता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने पहले ही आई हो। मेरी बेटी की लाख मिन्नतें, सफाइयाँ और हाथ जोड़ने के बावजूद इसने यकीन ना किया, उल्टा उसके मुँह पर ये अल्फाज दे मारे, ये रात है, मैं इतना बेहिस नहीं कि इसी वक्त तुम्हें निकाल दूँ, मगर सुबह होते ही तुम्हें तलाक दूंगा। मैं ज़िद बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर बीवी के किरदार पर हर्फ आए तो नहीं। पूरी रात मेरी बेटी कमरे में अकेली तड़पती रही। शौहर पलट कर ना आया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो रिश्ता टूट गया। मेरी बेटी को तलाक देकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिगड़ती हुई हालत में, आंखों में आंसू, दिल पर पहाड़ जैसे दर्द लिए बड़ी मुश्किल से टैक्सी में हमारे घर पहुंची। जैसे ही इसने दहलीज पार की, वो रोते रोते ज़मीन पर गिर गई। होश आने पर माँ से लिपट कर कहती रही, पता नहीं मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरा शौहर वो तो मोहब्बत के दावे करता था, मगर जब मुझ पर क़यामत टूटी तब इसने मुझ पर ही तो तोहमत लगा कर छोड़ दिया। मैं दरवाजे के पास खड़ा ये सब सुनता रहा, मगर मेरे कानों में बरसों पुरानी आवाज़ गूंज रही थी। वो लड़की जिसने मैंने अपनी हवस की तस्कीन के लिए बर्बाद किया था, वह भी बद्दुआएं दे रही थी, वह भी शायद शौहर के सवालों के जवाब दे रही थी। इस वक्त मुझे इसके अंजाम की ज़रा परवाह ना थी, लेकिन आज 23 साल बाद मैं पहली बार इस लड़की को याद कर रहा हूँ। ख्याल आता है, न जाने इसका शौहर इसे माफ़ कर पाया था या नहीं। शायद इस पर भी तोहमत लगी हो, शायद वह भी छोड़ दी गई हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन आज जब यही क़यामत मेरी अपनी बेटी पर टूटी तो मैं बेख्तियार अपना दिल थामे दरवाजे के पास बैठ गया। सांस लेना भी दुश्वार था। दोस्तों, ये वाक़या आपके लिए एक पैगाम है। बुरा करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि ये बुराई एक दिन लौट कर आपके दरवाजे पर ज़रूर आएगी। ख़ास तौर पर जिना, ये एक ऐसा जुर्म है जो टलता नहीं। ये कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में आपसे वसूल किया जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।